Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your chapter number 9 our previous classes. Now we are going to end this chapter in this video. Yes, we will do some discussion on NCERT question answers that has been given to us in our book. So this will be a part 4 of this chapter and we will do some exercise in this video. So let's start it. We will start your question number 1. Complete the following table and discuss how their work is different. So हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कि कैसे इन लोगों का काम एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ठीक है. So how their work is different. So there is a table has been given to us and we have to fill the table. Okay. So we can complete our answer in this way. First there are some names have been given to us, then place of work, we will compare earning, we will compare security of work, benefits received, work on their own or employed. So first if we talk about Bachchu Manji, so he was a rickshaw puller, cycle rickshaw था उसके पास में, so he was a cycle rickshaw puller. Students, next we will talk about the earning. So rupees 100 per day वो कमा लेते थे easily. Okay. Then अगर हम देखें कि ये बहुत ही कम है उनके सर्वाइवल के लिए और वो अपनी फैमिलीज के साथ भी नहीं रह पा रहा है. Security of work, no security here. Benefits received, no benefits. Work on their own or employed, so he have to work on their own. ठीक है. सो नेक्स्ट हरप्रीत एंड वंदना की अगर हम बात करें तो रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप था, शोरूम था इनका. ठीक है. सो वेरी गुड अर्निंग. देन दे हैव लाइसेंस टू डू बिजनेस, दे अर्न प्रॉफिट्स, वर्क ऑन देयर ओन. सो इनके पास में भी कोई जॉब नहीं था, ये अपने खुद के बेसिस पे वर्क ऑर्गेनाइज करते थे. देन इफ वी टॉक अबाउट निर्मला, सो निर्मला एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही थी. दैट इज़ नॉट परमानेंट जॉब. सो रेगुलर वर्क था इसके पास में. समटाइम इन अ ईयर लाइक 4 to 3 months इसे काम नहीं मिल पाता था. सो जॉब सिक्योरिटी नहीं है. गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. रुपीज़ 280 अ डे फॉर 8 hours एंड रुपीज़ 100 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल वर्क और यू कैन से फॉर वर्किंग लेट. Security purpose, no security there. Benefits received, no benefits. Work on their own or employed, so she was employed. Okay. Then Sudha was working in a company. She was a marketing manager. Okay. So इसका सैलरी कितना है? रुपीज़ 30,000 पर मंथ इसका सैलरी है. गुड सैलरी पैकेज है इसका. जॉब सिक्योर्ड है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स रिसीव्ड, पेड लीव्स मिल रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर देयर, सेविंग फॉर ओल्ड एज, और पीएफ में वो अपना पैसा जमा करवा के उसे रिटायरमेंट पे ले सकती है. देन शी इज़ एम्प्लॉयड. सो हमने यहाँ देखा कि अलग अलग तरह से इनके जो अर्निंग है वो अलग अलग वेज से ये लोग प्राप्त कर रहे हैं. एंड वी हैव कंपेयर ऑल द वर्क्स दे आर डूइंग. देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. In what ways is a permanent and regular job different from a casual job? So we have to discuss the differences between permanent or regular job and yes, casual job में क्या difference होता है. So here we can write our answer in this way. In a permanent and regular job, an employee gets a regular salary every month. Besides a regular salary, he gets other benefits such as saving for old age, holidays, medical facilities for his family, etc. Thus, his job is secured, but casual workers avail no job security. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. So, अगर ये लोग अच्छे से प्रॉपर काम करने में इन्हें कोई परेशानी आ रही है और अपनी प्रॉब्लम्स अगर ये बताते हैं तो इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, इन्हें जॉब से निकाल भी दिया जाता है. They are also expected to work very long hours. They don't get other benefits like permanent employees. So जैसे permanent employees को पर मंथ सैलरी फिक्स रहता है, अगर वो बीमार हैं तो अगर वो जिस दिन हॉलीडे चाहें तो इन्हें हॉलीडे भी मिल जाता है, मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं और इनके लिए सेविंग्स भी होती हैं. सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं. सो ये हमने देखा दोनों में कंपेयर करके. Then question number 3, what benefits does Sudha gets along with her salary? Salary के साथ साथ क्या benefits मिल रहे हैं इसे? So here answer, Sudha is a permanent worker with a company. She gets several benefits along with her salary. क्या क्या benefits मिलते हैं? Saving for old age. A part of her salary is kept in a fund with the government like provident fund. She will earn interest on these savings. When she retires from this job, she will get this money in the form of pension.
क्लियर। सो जब वो इस जॉब से रिटायर हो जाएगी तो उसे ये जो पैसा वो जमा कर रही है ओल्ड एज के लिए एज ए पेंशन उसे मिलती रहेगी। सो दैट गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। सो उसे सालाना छुट्टियां भी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली, for her and her family, the company pays Sudha medical expenses up to a certain amount for her and her family members। और उसे मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि जो उसकी चिकित्सा के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसका भी एक निश्चित अमाउंट जो है गवर्नमेंट, उसकी जो कंपनी है वो पे कर रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो, एक परमानेंट कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ शी फेल्स इल एंड हर सैलरी इज नॉट कट इफ शी टेक्स दिस लीव। सो उसे कुछ लीव्स भी मिलती है, अगर वो इस लीव को लेती है मेडिकल लीव्स को तो उसकी सैलरी कट नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू, fill in the following table to show the services provided by people in markets which you visit frequently। जहाँ आप मार्केट में बहुत बार जाते हैं और आपको पसंद है मार्केट में आना जाना, शॉपिंग करना, तो आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी हैं। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू fill the name of shops and other things। So here a table has been given to us, name of the shop or office that you have seen there, nature of the service provided। So कैसे चीज़ें हमें fill करनी है। Here we can fill this table। name of the shop or office, first garment showroom देखा है हमने, क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड्स क्लोथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जैसे भी कपड़े पहने हो, मुझे फैशन गारमेंट्स लेने हो, रेडीमेड गारमेंट्स लेने हो, है ना, इनर वेयर, आउटर वेयर, सब तरह की चीज़ें जो यहाँ इस शोरूम में, गारमेंट शोरूम में मुझे अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है इजीली। शॉप सेलिंग यूटेंसिल्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। सो दे प्रोवाइड हाउस होल्ड थिंग्स। ये क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रही है इस तरह की शॉप, ये हाउस होल्ड थिंग्स प्रोवाइड करवाती है। आगे अगर हम बात करें बैंक, तो बैंक हमें क्या करवाती है, कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ई मित्र है, बैंक है, और ये हमारा पैसा भी सिक्योर रखते हैं प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ टू आवर मनी। ठीक है। देन नोट स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू ऐड मोर। सो अब इसके आगे आप भी ऐड करेंगे क्या क्या चीज़ें आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वहाँ देखा है, आपके मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें और आपको देखने को मिलती हैं, और उन शॉप्स के नाम प्लस कौन सी सर्विसेज वे प्रोवाइड करवाते हैं। यू हैव टू फिल अदर थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव क्लियर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर and I hope you will take care of your health and studies. Good, my dear students.